Good afternoon, students. Today is 17th February 2021 and we'll be starting Unit 2 of C programming. So now let's begin with C as a language, C as a programming language. Let's begin with the interfacing between computer and human being. See, when we are talking about a programming language, language is basically a one which provides means for communication. Language क्या होता है? Means of communication. मतलब हमको एक दूसरे से बात करना है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेजेस क्या करती है, ये हेल्प करती है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बात करने के लिए. सिमिलरली व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज. मतलब क्या हुआ, एक ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर से बात करने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसको बोलते हैं, जो मीडिया चाहिए होता है, जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट कर सके, that is called as computer language, or it is also called as a programming language. Now what are the basic concepts when we talk about this? Like in English language, Hindi language, उसके वर्णमाला रहती है. हिंदी में, इंग्लिश में अल्फाबेट्स रहते हैं, अल्फाबेट्स को फॉर्म करके वर्ड बनते हैं, वर्ड को फॉर्म करके सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस देन using group of sentences forms a paragraph, then we form essays, literature, books, इस तरह से बढ़ता जाता है. तो हमारा जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो उसका जो what are the bases, ABCD क्या होती है, that we are beginning with. So now here we will begin with the C programming language concepts starting. So it is like alphabets, words, sentences, and then paragraphs. Similarly, in C programming language we have alphabets, digits, special symbols. ये सब चीजें रहती है जिसको हमको यूज कर रहा है प्रोग्राम में. तो कौन कौन से अल्फाबेट्स रहते हैं? स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, कुछ डिजिट्स रहते हैं 0 से लेकर 9 तक, and then special symbols. What are the different special symbols which are available in C programming language, जो कीबोर्ड पे भी अवेलेबल रहते हैं? कोई सिंबल्स बता सकते हो जो हमको कीबोर्ड पे अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे? लेस देन, ग्रेटर देन. वेरी गुड. लेस देन, ग्रेटर देन. सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट जो स्पेशल सिंबल यूज होता है, दैट इज विच सिंबल? Equal to. नो. Very first line in C programming language, which symbol do you use? Less than. No. Hash include. Bracket. Has include this, ma'am. Has Include. Input, output, header file. Very good. So it is hash is the special type of symbol which is the first symbol used in the C programming language. Okay. Then apart from that, less than, greater than, equal to, not equal to, then comma, semicolon, full stop. These are some of the other special symbols. Stars, dollar, at the rate, ये सब special tilde है, curly bracket है, round bracket है, single quote, double quote, hyphen, underscore, colon, pipe, backslash, forward slash, square bracket, round bracket, curly bracket, okay, semicolon, comma, percentage, and or. Okay, these are some of the special symbols which are used in any programming language. Then after this, what is the next thing? That is constants, variables, and keywords. These are some of the things which are being formed using these alphabets or digits or symbols. Constants होता है, variables होता है, keyword होता है. We'll see these things later on. After that, in constants, variables, keywords, alphabets, digits, symbols से हम क्या बनाते हैं? Instructions. और instructions पूरी combine हो जाती है, then it forms a program. जब पूरी instructions को combine कर देते हैं, then that is called as a program. That is called as a C program. So like in English, we have alphabets, words, sentences, paragraphs. Similarly, in programming language, we have alphabets, digits, special symbols, constant, variables, keyword, instructions, and program. Okay, now what are the C character set? जैसे हमने अभी alphabets, digits, special symbols बोले थे, A to Z, small a to Z, 0 to 9. These are some of the special symbols, and the white space, tab, new line character. These are some of the C character set which is there. इसको C set बोलते हैं, C का character का set है. Now let's see what are C tokens. What are the tokens? Tokens means what? Tokens means it comprises of constants, keywords, special symbol, operators, string, variables. These are some of the tokens which are being
used in the C programming language. टोकन वर्ड जनरल लैंग्वेज में कहां पर सुना है आपने? टोकन वर्ड जनरल लैंग्वेज में कहां पर सुना है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहीं पे रियल लाइफ में कहीं पे ये टोकन वर्ड हैव यू हर्ड? कोई चीज के लिए अगर लाइन लगाए, मान लो वो बोलते टोकन लेना है, हाँ, तो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट टोकन? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टोकन? एक रिसीव रहती है। हाँ, दैट इज इट गिव्स यू द सीक्वेंस। वो टोकन से हम क्या पता चलता है हमको कि हमारा सीक्वेंस क्या है, किसके बाद मेरा नंबर आएगा। दैट इज व्हाट इज अ टोकन। ठीक है ना? एक आप उनको देते हो, टोकन देते हो, तो आपका नंबर आ गया है, मतलब आपका जब नंबर डिस्प्ले होता है तो यू गिव दैट टोकन एंड योर प्रोसेसिंग इज बीन डन। जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको टोकन मिलता है, फिर जब आपका नंबर आता है तो टोकन आप वो बैंकर को दे देते हो और अपना प्रोसेसिंग करते हो। सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि टोकन्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क, कि आप उसको देते हो, इसको यूज करते हो तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, कुछ वो काम करता है। जैसे कि बैंकिंग में वो टोकन देते हो तो आपको प्रोसेसिंग करवाता है, इसी तरह से ये भी टोकन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन करता है। उसको दोगे, उसको करोगे तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करेगा। Okay, so what are the different tokens over here? Constants, keywords, special symbol, then operators, string and variables. Okay, these are the 6 types of tokens. याद करना है इन सबको, ये चीजें जो है याद करना है। कौन कौन से tokens है? Constant, keyword, special symbol, operator, string and variables. Now let's begin with the keyword and identifier. We'll talk about these later on. आगे है ये हमारे पास में कि ये constants क्या होते हैं, variables क्या होता है। Okay, we'll see these things in the next class, next is slide. So before we begin with that, let's see what are the keywords and identifiers. Keyword क्या होता है? Keyword मतलब एक special word जिसका कुछ एक special meaning होता है। All keywords have fixed meaning and meaning cannot be changed. Keywords क्या होते हैं? वो वर्ड जिनका कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग है और उन वर्ड के मीनिंग को हम बदल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। जैसे अब हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमको हैश डिफाइन हो गया, देन एक्सटर्न कीवर्ड हो गया, okay. Keywords are the words which has specific meaning and the meaning of those words cannot be changed. For example, break else. Similarly, what are the identifiers? Identifiers refers to the names of variables, functions and arrays. अब आइडेंटिफायर मतलब नाम देना, किस किस को नाम देना? वेरिएबल को नाम देना, फंक्शन को नाम देना, एरे को नाम देना, किसी भी चीज का नामकरण करना, दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब किसी को रेफरिंग, किसको रेफर करना है? किसी नाम को रेफर करना है। कौन से नाम हो सकता है? वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन, एरे। ये जो टर्म है ना, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, ये सब हम आगे देखेंगे। तो आइडेंटिफायर, अभी जो मैंने वर्ड बताया वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? इट रेफर्स टू द name of the variables, functions and arrays. So these are used user defined names and consist of sequence of letters and digits. User मतलब क्या होता है? जो यूजर ने जिसको बनाया है, यूजर डिफाइंड है मतलब यूजर ने उनको बनाया है। तो यूजर नाम देता है, कोई भी नाम दे सकता है। जो नाम, जिस नाम में कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, वो नाम जो है वो यूजर बनाता है। वो नाम कौन से नाम होते हैं? आइडेंटिफायर्स। वो नाम किसको दे सकते हैं? एक एरे को नाम दे सकते हैं, एक फंक्शन को नाम दे सकते हैं, एक वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं। तो जैसे फर्स्ट कैर मस्ट बी अल्फाबेट। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम आइडेंटिफायर का नाम देते हैं तो जो पहला कैरेक्टर रहता है वो एक अल्फाबेट होना जरूरी है, क्योंकि इसने क्या बोला कि इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम एंड इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। मतलब वो जो नाम दे रहे हैं, जैसे अगर मैं अपना नाम बोलती हूँ तो मेरा नाम क्या रहेगा? सुहाशनी, जिसमें सारे ही अल्फाबेट्स आते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित, रोहित में सारे के सारे ही अल्फाबेट्स आते हैं। पर यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोई आइडेंटिफायर का नाम देते हैं तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो पहला लेटर रहता है वो कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद के जो लेटर्स हैं वो, उसके बाद जो भी आता है वो या तो लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके,
It can contain letter, digits, underscore, not white spaces and keyword. So it can contain anything after the first character. First character के अलावा कुछ भी नाम दे सकते हैं. Now the difference between the constants and the variables, and what are constants and what are the variables. Constant is a quantity that does not change. Constant क्या होता है? एक quantity जिसकी value को हम नहीं बदल सकते. और वेरिएबल क्या होता है? इज अ क्वांटिटी दैट वैल्यू कैन बी चेंज रिस्पेक्टिवली. वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स क्वांटिटी रहता है जिसकी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3x plus y equal to 20. So 3 and 20 cannot be changed. They are called constants, whereas quantities like x and y can vary or change, hence are called as variables. Basically क्या होता है? देखो वेरिएबल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे पास में सपोज एक वेरिएबल है v. तो वेरिएबल की अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन बोलती तो वो क्या है? v इज अ वेरिएबल. वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन. वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन विच आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा. डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा. कौन सा डेटा स्टोर किया मैंने? 20. और मेमोरी लोकेशन क्या है? 1000. वेरिएबल का नाम क्या है? v. सो आई कॉल दैट v इज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू. तो वैल्यू कौन सी स्टोर की? 20. और इसका मेमोरी लोकेशन क्या है? 1000. तो वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस. अब जैसे आप मेमोरी लोकेशन का एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर आप मूवी जाते हो, कोई भी मूवी जाते हो, तो सबसे पहले टिकट बुक करते हो. तो टिकट बुक करते हो मतलब बेसिकली आप सीट बुक कर रहे हो. तो ये आपकी सीट है जिसको आपने बुक किया. ठीक है. इस सीट का ये एक नाम है. क्या नाम है? आपने C1 सीट नंबर बुक किया. इसका एक मेमोरी लोकेशन है. ये मेमोरी लोकेशन इंटरनल मेमोरी लोकेशन होगा. कहाँ पर? ये बेसिकली स्टोर है. इसको हम कॉल तो C1 से करेंगे, पर जब हम इसको रूम के अंदर लोकेट करेंगे तो इसका ये वाला जो है वो मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस लोकेशन है, जहां पर ये पर्टिकुलरली रहता है. और ये आप बैठे हो इसके अंदर, ये कंटेंट है, ये रोहित बैठा है. तो रोहित इज व्हाट? रोहित इज द वैल्यू इन द वेरिएबल C1 विच इज एट मेमोरी लोकेशन 1010. ओके. चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं. ये मेरा घर है. ठीक है. इस घर का ये एड्रेस लोकेशन है. ये एड्रेस हो गया 2000. ठीक है. इस एड्रेस लोकेशन का, इस घर का जो नाम है वो कुछ मिला है. सपोज इस घर का नाम क्या है? RS स्मारक. ठीक है. RS स्मारक नाम से इसका घर का नाम है. और ये घर में कौन रह रहा है? ये घर में मैं रह रही हूँ, सुहासिनी. तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल. दिस इज अ वेरिएबल. दिस इज द वैल्यू इन द वेरिएबल. दिस इज वैल्यू and this is the address location at which the data is stored. So this is called as variable. अब ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी लोकेशन है फॉर स्टोरिंग द वैल्यू. वेरिएबल वर्ड में एक वर्ड आता है वेरी. ये वेरी वर्ड VARY. What do you mean by vary? That is different values. So variables are one in which different type of values, different values can be stored of same type. उसी टाइप के डिफरेंट वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज कॉल्ड एज एज. एज के अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? कोई भी इंटीजर एज. नेगेटिव वैल्यू नहीं, पॉजिटिव इंटीजर एज. 0 years, 1 year, 2 year, 3 year. तो यहाँ पर ये क्या लेगा? एज की वैल्यू 1 2 3 4 लेगा. ये हमारा वैल्यू हो गया, ये वेरिएबल हो गया. और जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया हुआ था ये 1000 मेमोरी लोकेशन हो गया. सो वेरिएबल कैन कंटेन वेरी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज. तो ये एज में 1 वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, 10 वैल्यू भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं. दिस इज द वैल्यू. सो वेरी मीन्स व्हाट? डिफरेंट वैल्यूज. डिफरेंट वैल्यूज
किस टाइप की डिफरेंट वैल्यूज, एज टाइप की। एज कैसा रहता है, इंटीजर, तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर नंबर लिख सकते हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है, पॉजिटिव नंबर लिखना है। ओके, अब कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो यहाँ पर ये जो एज है ये हमारा वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट मतलब जो बदल नहीं सकता। जैसे सपोज अगर मैंने ये वाली जैसे ये इक्वेशन की बात करें, तो अब यहाँ पर ये 3 वैल्यू बदल नहीं सकते, ये 20 बदल नहीं सकती, बट ये x और y क्या है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है that can be stored in x and y. So these are variables and 3 is a constant. Okay. Now what are the different constants? ये जो हमने पहला पढ़ा था C tokens में, we have seen what are the C tokens. कौन कौन से tokens थे हमारे पास में C programming language में? Tokens are constants, keyword, special symbol, operators, string and variables. So we'll begin with constants. So what are constants? Constants are one whose value cannot be changed. So C constants are being divided into 2 parts, primary constants and secondary constants. Primary constants में क्या आता है? Integer constant, real constant, character constant, string constant, escape sequence. Secondary constant में क्या आता है? Array, pointer, structure, union, enum. Okay. Now let's begin with the integer constant. इंटीजर मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 0, ये सब इंटीजर आता है। कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू जिसकी, जो वो चीज, वो डेटा जिसको हम बदल नहीं सकते। सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स 3 टाइप्स, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सेट ऑफ डिजिट्स 0 to 9, 0 to 9 जो भी सेट ऑफ नंबर्स आते हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो वो कौन से नंबर्स कहलाएंगे, डेसिमल नंबर्स। 123, -87, 0 + 56 आर वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। जैसे $1000 लिखा, 15750 लिखा, ये ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा, ये इनवैलिड डेसिमल नंबर्स हैं। ओके, ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं, ऑक्टल नंबर वो होते हैं जिसका बेस जो है वो 7 रहता है और इन सिंगल डिजिट जो है वो 0 to 7 वेरी करते हैं। ऑक्टल मतलब टोटल 8 डिजिट्स, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इंडिविजुअल डिजिट्स जो है दैट इज आइदर बिटवीन 0 to 7। सो 0, 7, 5, 0, 5, 1 आर ऑक्टल नंबर्स। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16, 0 to 9, A to F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 एंड F की 15। 0 to 15 that is total 16. Okay, so likewise जैसे ये दिया हुआ है 0x2, 0x3a, 0xe, 5 etc are some of the hexadecimal numbers. x मतलब hexadecimal है, 0x2 मतलब ये hexadecimal है, 0x3a ये hexadecimal, xe5. ओके, इसमें कौन कौन से डिजिट्स अल्फाबेट्स अलाउड है, 0 to 9 एंड देन A to F. रियल कांस्टेंट्स दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। रियल मतलब क्या होता है, रियल नंबर जिसमें डेसिमल नंबर रहता है। डेसिमल नंबर्स मतलब पॉइंट, 2.5, 2.3, 2.4, दैट इज कॉल्ड एज रियल कांस्टेंट्स और द फ्लोटिंग पॉइंट। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिंग एंटिटी लाइक प्राइजेस इफ कंटेन्स फ्रैक्शनल पार्ट्स। सो इन डेसिमल नोटेशन 34.32, इसको कैसे रीड करते हैं, 34 तक पूरा रीड करेंगे, पॉइंट के बाद में जो डिजिट दिए होता है उसको 1 by 1 रीड करते हैं। -0.56, 0.4555, 0.00054, etc. Likewise, you have to read these. In exponential notation or scientific, 215.65 may be written as 2.1565 E2 or also valid. ये देखो यहाँ पर 2 डिजिट्स आगे बढ़ा दिए, 1, 2, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 raised to power of e raised to power of 2, 10 raised to power of 2, उसके साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मोरओवर these values can be written like 6.5 into e raised to power of -2. Likewise, it should the following be valid, 1.5 E25, क्या ये वैलिड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल कैन बी इन डेसिमल फॉर्म। ये जो है एक्सपोनेंशियल डेसिमल फॉर्म में हो सकता है कि 1.5 का रेज़ टू पावर 2.5, इज इट करेक्ट? लास्ट लाइन इज करेक्ट और नॉट?
रियल कांस्टेंट है कि नो है। नो, व्हाई? बिकॉज एक्सपोनेंशियल कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर, 2.5 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नॉट सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब कि एक अल्फाबेट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोड, दैट इज वाई। अल्फाबेट हो गया कैपिटल वाई, कैपिटल अल्फाबेट हो गया। डिजिट 0 to 9 डिजिट आ गया, मतलब एक ही कैरेक्टर है उसके अंदर, वो कैरेक्टर या तो डिजिट हो सकता है, या तो स्पेशल सिंबल हो सकता है, या तो फिर अल्फाबेट हो सकता है। Character constants have integer values known as ASCII, American Standard Code for Information Interchange Values. Like suppose if I write printf%da will print NO as 97, the ASCII value of the letter A. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये स्टेटमेंट से प्रिंट %da, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, डी मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ए की, बट it will print 97. Why it will print 97? Because the ASCII value of the letter A will be printed. We are writing D as for the integer value to be printed. So while print %C97, it will print A dash 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 A. Error in the book statement, instead of 97, it should be only 97. मतलब quotes में 97 नहीं आएगा. Without quotes, it should be treated as 97. विथ कोट्स विदाउट कोट्स कब होएगा, जब हम इसको इंटीजर नंबर प्रिंट कराएंगे तो वो विदाउट कोट्स होगा, और अगर हम इसको कैरेक्टर के साथ में कराएंगे तो फिर वो सिंगल कोट के अंदर आएगा। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, हमने इंटीजर कांस्टेंट देख लिया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट देख लिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग मींस सेट ऑफ कैरेक्टर्स, so sequence of characters enclosed in double quotes like hello, hi, it, hi 18, well done, a, these are string constants. string constants को डबल कोट्स शुरू करना है, स्ट्रिंग लिखना है, डबल कोट्स बंद करना है। स्ट्रिंग के अंदर सारे अल्फाबेट्स आते हैं 0 to A to Z, कैपिटल अल्फाबेट्स आते हैं कैपिटल A to Z, सारे डिजिट्स आते हैं 0 to 9, स्पेशल डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है। रिमेंबर दैट x and x is different because x has the equivalent integer value in the ASCII, x की इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू है, तो सिंगल कोड और डबल कोड में we have difference. String constants are normally used like displaying menu and messages. मेनू मैसेजेस के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट को इस्तेमाल किया जाता है। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, देखो ये बैकस्लैश है, ये जैसे हम बनाते हैं और ये पीछे में बैक में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये बैक में जा रहा है, तो ये बैकस्लैश है। बैकस्लैश एन इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में बैकस्लैश एन करते हैं तो नया नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट विल बिगिन विद अ न्यू लाइन। बैकस्लैश बी किया तो बैक स्पेस आएगा, स्लैश टी किया तो हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस देगा। सो ऑल अबव रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर ऑल्दो दे कंसिस्ट ऑफ टू कैर्स, सो दीज कैर्स कंबाइन आर कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस। दो कैर्स को इकट्ठे कंबाइन कर देंगे तो उसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, कोई भी दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो। अब देखो आ गया कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, सो अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड। सो वेरिएबल नेम टू एक्सेस यूज द डेटा स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक प्लेस। A variable is a data name that may be used to store data values. That is, you want to store two numbers 423 and 54। देखो हमको 423 और 54 कुछ नंबर स्टोर करने हैं, तो ये तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। इन कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? वेरिएबल्स चाहिए। सो NO1 NO2 क्या किया हमने? दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। तो इन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद में इसके अंदर वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। एक वेरिएबल्स को वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं? दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और नो स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, वेरिएबल को नाम कैसे देना है? वेरिएबल का नाम सबसे पहले अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए एंड इट मे कंटेन स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर लाइक टोटल, मार्क्स 1, AVE मार्क्स, दीज आर द वैलिड वेरिएबल नेम्स। बट यहाँ पर किससे शुरू किया? 3 से। 3 क्या है? इंटीजर, और हमने रूल क्या बनाया हुआ है कि 3 शुड नॉट बी एन इंटीजर, तो ये रॉन्ग है, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। द लेंथ
should not be normally more than 8 characters. इतना साइज लिमिट हो गया. वेरिएबल का 8 कैरेक्टर के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए. सिंस ओनली द फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंटली बाय द कंपाइलर. कंपाइलर जो है वो पहले 8 कैरेक्टर्स ही देखता है, उसके आगे के कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देता है. एवरेज वेट एंड एवरेज हाइट विल बी ट्रीटेड सेम. एवरेज हाइट क्यों सेम ट्रीट करेंगे? क्योंकि ये पहले के 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ये सेम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. ओके तो एवरेज वेट एवरेज हाइट, इसमें एवरेज वर्ड जो है ये कॉमन है. अब हमने बोला कि नॉर्मली जो एक वेरिएबल है उसकी लेंथ कितनी होती है 8. एवरेज सेम आ गया, इसके नीचे अंडरस्कोर सेम आ गया, तो इसके बाद के जो कैरेक्टर्स है उसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसलिए ये दोनों वेरिएबल सेम ही ट्रीट होंगे. अब मुझे बताओ, कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अब आपको नाम देना है उस वेरिएबल का. उसका नाम देने का क्या तरीका है? वेरिएबल को नाम देने का ये तरीका है कि जो पहला उसका पहला प्लेस रहता है, फर्स्ट प्लेस पे आपको सिर्फ अल्फाबेट डालना है. सेकंड प्लेस में अल्फाबेट डाल सकते हो या डिजिट डाल सकते हो, या फिर ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्कोर. अंडरस्कोर मतलब जो हाइफन रहता है वो बीच में लगाते हैं, अंडरस्कोर नीचे रहता है. अब देखो, मुझे एक वेरिएबल का नाम बताओ विच इज यूज्ड टू स्टोर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? बताओ. मार्क्स स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नाम बताना है. ये मेरा मेमोरी लोकेशन हो गया, ये एड्रेस लोकेशन हो गया जहां पर हमको वैल्यू स्टोर करनी है. तो अब मुझे वेरिएबल का नाम बताओ वेयर आई कैन स्टोर मार्क्स. नाम क्या होगा? वेरिएबल का नाम होगा मार्क्स, MARKS, और इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे? 50 में से जो मार्क्स आए हैं 45. ठीक है. सिमिलरली लेट्स डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द एज ऑफ अ पर्सन. सो वेरिएबल का नाम क्या होगा? जल्दी बोलो. एज. वैल्यू क्या स्टोर करेंगे इसमें? वैल्यू क्या स्टोर करेंगे? कुछ भी इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर्स. ये इसका मेमोरी लोकेशन क्या हो गया? 2000 मेमोरी लोकेशन. चलो अब मुझे क्या स्टोर करना है? आई वुड लाइक टू स्टोर द सैलरी स्टोर करनी है. इसका मेमोरी लोकेशन क्या हो गया? 1050. नाउ टेल मी व्हाट इज द वेरिएबल नेम? वेरिएबल, वेरी गुड, सैलरी. सेल भी लिख सकते हो, बस एक बात ध्यान रखना कि स्पेस नहीं आना चाहिए. यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको पुटअप करनी है 2 लाख. ओके चलो अब हम बात करते हैं. आई वुड लाइक टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एज कस्टमर नेम. तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा? कस्टमर नेम. तो CUST कस्ट हो गया और उसके बाद में नेम लिखा. तो क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? क्या ये इनवैलिड? क्यों? क्योंकि ये स्पेस दे रहा है, अंडरस्कोर लगा रहा है. अंडरस्कोर चाहिए. तो यस मैम. इसका मेमोरी लोकेशन क्या हो गया? 2000. लिख बहुत गंदी रही हूँ मैं. यहाँ पर वैल्यू कस्टमर का नाम लिखा राहुल, राज. ओके सो what are variables? Variables are the memory location where the value can be stored. अब यहाँ पर पहली बारी में मैंने कस्टमर नेम में राज स्टोर किया. आई कैन चेंज दैट वैल्यू. सेकेंड टाइम जब मैं इसको कॉल करूंगी और सेकेंड टाइम वैल्यू डालूंगी तो मैं राज की जगह कुछ और डाल सकती हूँ, मोहन डाल सकती हूँ. कस्टमर नेम कैन बी चेंज. तो वेरिएबल्स में वेरिएबल की वैल्यू बदल सकती है, कांस्टेंट में वैल्यू बदलती नहीं है. अब variable naming convention, uppercase and lowercase are significant. The variable total is not the same as variable total. Now why it is not same? Because C language is case sensitive. ये total और ये total सेम नहीं है, क्योंकि ये इसका T कैपिटल है, बाकी लेटर्स इसके छोटे हैं, इसके लेटर्स बड़े हैं.
तो ये वाला जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल्स दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग है कि अपर केस में लिखा तो अपर केस में यूज करना है, लोअर केस में लिखा तो लोअर केस में यूज करना है। द वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। वेरिएबल का नाम जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड कौन कौन से हैं हमारे पास में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हमारे पास में इफ, एल्स, स्विच, केस। स्विच वर्ड नहीं है, केस है। हाँ स्विच वर्ड भी है, स्विच, केस, देन डू, ब्रेक, देन ऑटो, Go to. गो टू, Int. एक्सटर्न, इंट, for, Continue. float, और do, कंटिन्यू। while, वेरी गुड, वेरी गुड। Continue. कंटिन्यू, वेरी गुड। ब्रेक, switch, कंटिन्यू, स्विच, दीज आर switch, द yes ma'am, कीवर्ड्स। तो क्या मैं, character, yes, वेरी गुड, तो क्या मैं एक वेरिएबल का नाम कैर लिख सकती हूँ? लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एज कैर। Is it a valid No. variable name? No. Why it is not valid variable name? Because it is a keyword. कीवर्ड का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दूसरी लास्ट बात क्या है वेरिएबल्स के साथ में कि वेरिएबल्स के नाम में स्पेस नहीं आता। जैसे मैंने कस्टमर नेम लिखा तो स्टूडेंट नेम देना है मुझे, तो s_ नेम दे दूंगी, मैं s नेम दे दूंगी, एक सिंगल वर्ड देना है, इसमें स्पेस नहीं आता। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आता कभी भी, ये याद रखना। माई टोटल इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। अगर मैं इस स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। तो डेटा टाइप विल स्टार्ट टुमारो। नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन, टुडेज सेशन।